Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. But introduction. My name is Nilima Bisht. I belong to Chamoli, Uttarakhand, but most of my life I have resided in Kota, Rajasthan. My schooling has been from Kendriya Vidyalaya. After that, my graduation, post-graduation, and B.Ed all from University of Kota, Rajasthan. Currently, I am working as postal assistant in Department of Posts. And apart from academics, I have always been involved in extracurricular activities and sports throughout my educational life. I have been an NCC cadet during my graduation, and I cleared my C certificate with A grade, holding the rank of cadet under officer. That's about me. Thank you. Okay, so who is the Education Minister of India? So currently it is Mr. Dharmendra Pradhan. Okay, and who is the chairman of National Education Policy? So chairman Mr. K. Uh, sorry, sir. I'll take a minute. Kasturi Ranjan, Mr. K. Kasturi Ranjan. K. Kasturi Ranjan. Okay, you belong from Uttarakhand state. Yes, sir. उत्तराखंड स्टेट नेम पहले उत्तरांचल था, Yes, sir. तो उत्तरांचल से उत्तराखंड कौन से ईयर में हुआ था? Sir, I'm not sure, but I can take a guess. It was around 2014. Okay, and summer capital of Uttarakhand. Sir, it is Gairsan now, Okay, it is under which district? in Chamoli itself. Okay, thank you. Hi, Nilima. So you've mentioned about your interest in extracurricular activities and sports. Sports and also being in the NCC, I think it teaches you a lot of valuable lessons that you take with yourself for the rest of your life. So how do you think that will help you in becoming a good teacher in future? Ma'am, I think sports and extracurricular activities are such things which helps in every profession, including teaching. Teaching, like a teacher has to be punctual, and a sports need you to be punctual, to be uh, up to date with the surroundings. Like in sports, also we need to keep ourselves updated about the games and team spirit. Being a teacher, we need to work in an organization, we need to work in collaboration with each other, with students. So this is also one thing. And leadership quality that I have gained from it, adaptability that I've learned, because we go to various places to play sports and we need to experience various cultures. So that's all. Right. And are you currently employed as a government employee? Yes, ma'am. Central. Why do you want to make this shift into teaching? Ma'am, there are various reasons, and first of all, the financial sustainability here, and also I've just completed my B.Ed, and it was during that internship period also that I realized I can be a good teacher, I can connect well with students. So teaching as a profession has means मुझे बहुत inspire किया, so that's why. Sure. So, as you've mentioned a lot about your adaptability, can you state a time or an experience wherein you faced difficulty and how did you tackle? Definitely, ma'am. The very first memory that comes to my mind regarding this is the NCC camp, the first ever camp that we attempted. It was in such a poor building, like we did not have windows. There were open holes, like so situations like that. But with all of us together, I think now that camp has, in my memory, it is one of my best camps. So we adapted to that situation pretty well. Sure. As you stated that you're a pass out of KV itself. Yes, ma'am. Why? Why KV in particular? Like, don't you want to explore into private sectors? As a teacher, ma'am? Yeah. Ma'am, because I feel emotionally connected to KV, and I have seen other teachers of my KVs, and I can only think of the emotional reason, because I have never worked anywhere else in teaching field. So this was the first opportunity that came to me, and that's So, it. as I can see and speculate from your personality needs growth, like you strive for growth. Don't you think like working in a government sector gives you a sense of stagnancy to some extent? Ma'am, I think
it depends on person to person. Like growth completely, I feel like depends on a person. You can grow in every field. You can learn everywhere, meet new people. Like currently, I'm working in postal department, and there are people who are working there for from very long time. But every time you come across various people, other people, so you grow in every way. And teaching is something which give you immense opportunity to grow yourself, because we need to keep ourselves up to dated in front of the current generation. So I think teaching to is the best job where you can grow yourself. Thank you. जैसे केवीएस ने 2018 में अपने सभी इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे, जिसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, जिसमें एक में आपका परिचय, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें बीच में जीके के क्वेश्चंस भी डाल दिए जाते थे, साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, आप कहाँ से आते हैं उससे संबंधित सवाल, ये सारी चीज़ें होती थी। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ तो उसमें होती है कि आप जिस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके किसी एक चैप्टर की डेमो टीचिंग। तो हमने भी उसी पैटर्न पर इन अपने सारे इंटरव्यूज को शूट किया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और डेमो वाला पार्ट जो होता है, कई इंटरव्यूज में पहले पूछा जाता है, कई में बाद में पूछा जाता है। वो इंटरव्यू के मूड पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू का जो टाइम होता है वो अमूमन 10 से 15 मिनट होता है, लेकिन हमने जब स्टूडेंट एक इतनी दूर से चल के हमारे पास इंटरव्यू देने आया तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देने की कोशिश की, यानी हमने ये इंटरव्यू जो है 15 से 20 मिनट के रखे हैं। लेकिन जो जनरल एक एवरेज टाइम होता है केवीएस इंटरव्यूज का, वो होता है 10 से 15 मिनट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आप भी ऐसी ही तैयारी करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही आपका बढ़िया पैनल एक इंटरव्यू ले, रिकॉर्डेड वीडियो आपको बाद में मिल जाए जिसे आप रिव्यू कर पाएं, आप भी चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू को पैनल रिव्यू करके आपको रिमार्क्स भी दे, वो भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा। तो अगर आप ये सारी ही चीज़ें चाहते हैं तो आप भी हमारे केवीएस मॉक इंटरव्यू के बैच में एनरोल कर सकते हैं, और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पे जाकर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीम आपसे अपने आप कनेक्ट कर लेगी। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके केवीएस के इंटरव्यूज के लिए। आपने बताया कि आपका केवीएस से इमोशनल कनेक्ट है, तो वो 2 पॉइंट बता सकते हैं मुझे क्यों इमोशनल कनेक्ट है? So because एज अ पर्सन आई हैव ग्रोन देयर, जैसे कि मैं अपने आप में लीडरशिप देख पा रही हूँ, या मैं जो भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स देख पाती दैट हूँ, मेक्स यू इमोशनल। दैट मेक्स मी इमोशनली कनेक्ट कि इस स्कूल ने मुझे इतना पहुँचाया है। दैट्स वन रीज़न। एंड सेकेंड, द टीचर्स देयर दैट आई फाउंड। And what about students? Don't you Students- feel connected emotionally to the students of KVs? Yes, as a whole, I think. Okay. You want to be a maths teacher at TGT level. थोड़ा आप मुझे बता सकती हैं प्रीवियस नॉलेज का क्या यूज है मैथ में? हाँ, प्रीवियस नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये जानना होता है कि बच्चों का किस लेवल पे बच्चे अभी हैं, तो हमें अपनी टीचिंग शुरू कहाँ से करनी है, कितना उन्हें सिखाना है। ऐसा होने के पीछे क्या मैथ्स के नेचर का कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है? ओके, सर आई थिंक मैथ्स एक लॉजिकल फॉलो करता है, लॉजिक फॉलो करता है। तो कोई भी लॉजिक हम बच्चों को कुछ नया सिखाते हैं You तो उससे think or you पहले, believe math is logical? यस आई थिंक मैथ्स इज लॉजिकल। You think? You don't believe that maths यस is आई logical? बिलीव मैथ्स इज लॉजिकल। Can you elaborate about the shape of maths? शेप ऑफ मैथ्स, मैथ्स दिखता कैसा होगा? ओके, कैन आई टेक अ मोमेंट? Yes. Sir, I can relate maths to a sphere maybe if I have to, any Sphere. shape, because it do not have any proper corners, any boundaries. It's a whole round. So that's come to my mind. So you are extending the boundaries of maths in every direction exactly same, because sphere is perfectly symmetrical. So you think it's linear growth or vertical growth? Sorry, sir, I cannot.
Deductive or inductive? Do you know these words? Yes, sir. Can you tell me how would you use deductive approach in your teaching? Sorry, sir. Maths is based on deductive reasoning. Can you explain this point? Sir, I'm sorry, I'm not able to recall right now. Thanks. आपके क्लास में एग्ज़ाम टाइम में बच्चा बीमार हो गया, वो पेपर नहीं दे पाया, टर्मिनल टेस्ट है। फाइनल टेस्ट जब होंगे और जब रिज़ल्ट आएगा तो उस बच्चे के लिए क्या मतलब करेंगे? उसके पेपर दिलवाएंगी उसको या उसकी काबिलियत देखकर उसको नंबर देंगी, क्या करेंगे? मैम अगर वो बच्चा काफ़ी आउटस्टैंडिंग रहा है थ्रू आउट द एजुकेशन टाइम उसका, तो हम उसको वैसे भी प्रमोट कर सकते हैं, नो डाउट। और अगर वो अपने आप ही प्रमोट कर लोगे? नहीं, कंसर्न जो भी प्रोसीजर होता होगा वो देख के, और वैसे भी जो ऐसी प्रॉब्लम जब आती है तो उनके लिए सेकंड टाइम मिलता है बच्चों को अपीयर होने का, तो ये बच्चे पे भी डिपेंड करता है, वो दे सकता है एग्ज़ाम दोबारा। और अगर यही ऑप्शंस मेरे दिमाग में आते हैं। बच्चा पेपर देने आ रहा है, वो किसी कारण लेट हो गया, एग्जामिनेशन रूम में मतलब स्कूल में लेट पहुंचा, तो ऐसे में क्या बच्चे को पेपर देने के लिए बिठाया जाएगा या उसे रोक दिया जाएगा? मैम उसकी प्रॉब्लम देखते हुए मेरे हिसाब से उसको मौका दिया जाना चाहिए। थोड़ा टाइम, मतलब ये भी डिपेंड करता है कितना टाइम वो लेट हुआ है, तो उस हिसाब से उसे मौका मिलना चाहिए पेपर दिलाने का। हाँ, पेपर देने का। बच्चा नकल करते हुए पकड़ा गया, आप उसके आंसर शीट ले लेंगी, उसको डांटेंगी, क्या करेंगे? मैम नकल करना बिल्कुल गलत है, बट अगर वो ऐसे पकड़ा जाता है तो आई थिंक एक्शन लेना पड़ता है। एक बार हम उसको वार्न कर सकते हैं। फाइनल एग्ज़ाम है। फाइनल एग्ज़ाम है मैम, फिर भी एक बार वार्न कर सकते हैं, और फिर भी क्या अगर करेंगी वो? ऐसा नहीं करे, मतलब नकल अगर क्लास में झांका ताकी वाली नकल है उसके लिए वार्न किया जा सकता है। अगर वो उसको- अपने साथ कुछ लेकर नकल के लिए आया है तो उसके लिए तो फिर मैम प्रॉपर एक्शन उसके खिलाफ लेना चाहिए। मतलब एक्शन क्या उठाएंगे? एक्शन उसको उसके पेपर अलग रूम में ले जाके दिया जाए, उसके साथ वो जो लाया उसकी प्रॉपर चेकिंग की जाए, इस तरह का। पेपर हम आई थिंक उसको देने देंगे, बट डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में। तो ऐसे तो वो होपलेस हो जाएगा, जो उसको आता होगा वो भी भूल जाएगा। नहीं मैम, हम मोटिवेट कर सकते हैं उसको कि अब जो हो गया, ये फाइनल एग्ज़ाम है, तो उसके लिए क्लास रजिस्टर बनाते हैं तो स्टूडेंट की पूरी जानकारी के लिए, मतलब उनके बारे में आपको जो जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या उसमें कॉलम बनाएंगे? वैसे तो प्रिंटेड होते हैं रजिस्टर, ठीक है, किस में क्या लिखना है, बच्चे का नाम है, फादर्स नेम है, और उसके अलावा आप अपने आपको जो चाहिए, क्योंकि समय समय पर कोई ना कोई बच्चों का कोई स्कीम आती है, कोई SC के बच्चे हैं, EWS के बच्चे हैं, मॉमडन बच्चे हैं, उनकी आपको काउंट करके भेजना होता है कितने बच्चे हैं, कोई बेनिफिशियरी स्कीम आती है, तो वो अपना रिकॉर्ड रखने के लिए क्या क्या मेंटेन करेंगे? मैम जैसा आपने मेंशन किया, जैसे डिफरेंट स्कीम्स जो भी अंडर प्रिविलेज जो भी सेक्शंस हमारे बनाए गए हैं उनके लिए है, तो एक कॉलम हम इसका रख सकते हैं कि वो किस चीज़ कहाँ को बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से हैं। और फिर आई थिंक मैम पर्सनली बच्चों का डेट ऑफ बर्थ का कॉलम अगर उसमें नहीं होता होगा, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं है, तो वो एक हो सकता है। और मैम इतना ही है। ठीक है। आप जो हैं हम सबको रेशनल और इरेशनल नंबर्स पढ़ा दें, ठीक है? बोर्ड आपके पीछे है ही, आप हम सब आपके स्टूडेंट्स हैं, और सर जो हैं कन्नड़ भाषा के छात्र हैं, मतलब कर्नाटक से हैं, और मैं कश्मीर से हूँ, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कर्नाटक में हो रखा है, तो ऐसे सब अलग अलग परिवेश के छात्र पढ़ाइए। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। लंच कर लिया सभी ने? यस मैम। नींद तो नहीं आ रही है ना? लंच करके नींद आती है ना? कोई बात नहीं, आज हम नंबर्स के साथ कुछ खेलने वाले हैं मैथ्स में। ओके, सबको ध्यान से सुनना है
और जो मैम पूछेगी उसका जवाब देना है बस। सोने का काम ही नहीं है, आपको जगा के रखने का काम मेरा है। ओके, चलिए नंबर्स के बारे में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? कौन कौन से नंबर्स जानते हैं, कोई बताएगा? मैम 0। 0, ओके। 0 एक नंबर है, और नंबर है 1 2 3 4 0 सभी नंबर्स है। बट मैं आपसे पूछ रही हूँ नंबर का टाइप किस तरह का नंबर है? छोटी क्लासेस में पढ़ लिया है हमने, सब पढ़ के आए हैं। कैसे पास किया पिछली क्लास? जवाब दो। चलो कौन से नंबर्स पढ़े हमने? Prime numbers. प्राइम नंबर्स, वेरी गुड। Composite numbers. कंपोजिट नंबर, यस। और होल कोई? नंबर्स। होल नंबर्स, वेरी गुड। ओके, तो हमने अभी तक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स ये सब पढ़ लिए हैं। ठीक है, इंटीजर्स जाते हैं माइनस में, राइट? नंबर लाइन पे देखा है सभी ने, Yes, ma'am. ये एक्सटेंड होती रहती है। अब क्या 0 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं आ सकता? आ सकते हैं आ मैम। सकता है। देयर कैन बी मैनी नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। कौन सा नंबर आ सकता है? ये एकदम 0 और 1 के बीच में है, क्या नंबर हो सकता है ये? 0.5. 0.5। ठीक है, किस तरह का हुआ ये? इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, यस मैम। राइट? तो ये हमारा होता है इस तरह। अब यहाँ से हम डेफिनेशन पे चलते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। कैसे? p/q, वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स। ये आपको याद रखना है। इंटीजर्स का कंसेप्ट आपको पता ही है। यस मैम। इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। एंड एक कंडीशन और होती है यहाँ पे, हमारा डिनोमिनेटर दैट इज q शुड नेवर बी 0। वाई मैम? ठीक है, क्योंकि 0 जब डिनोमिनेटर में जाता है तो ये फॉर्म हमारी नॉट डिफाइंड हो जाती है। क्यों होता है मैम? नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि, चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसी को। देखो 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करें या एनी नंबर को, बेसिक डिवीजन करके देखते हैं। 0 से हमने डिवाइड करना है 1 को। 0 को कितना टाइम्स करूं कि 1 आ जाए? इनफाइनाइट। कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? इनफाइनाइट मैम। आपने ये पढ़ा है 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 Zero ही आता आता है। ठीक है आप मैम। इनफाइनाइट भी करोगे तो आपको 1 तो नहीं मिलने वाला किसी भी कंडीशन में, ठीक है। राइट? तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। 0 कभी किसी चीज को डिवाइड कर ही नहीं सकता। लेकिन मैम 0 0 को तो डिवाइड कर देगा, क्योंकि उसके टेबल में 0 आता है। 0 को डिवाइड कर देगा। 0/0 तो हो जाएगा मैम डिवाइड। 0/0 कैसे डिवाइड करोगे? 0 into 0 is equal to 0। यस मैम। ओके, अब देखो 0 को 0 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है आपके पास? 0, राइट? लेकिन आप 0 को 1 से करोगे तो भी तो 0 ही आएगा ना, यस मैम। तो राइट? डिवाइड हो रहा है। तो 1 भी आप मतलब इससे तो आप ये कह रहे हो कि 0/0 का आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कोई फिक्स तो नहीं दे सकते हम, तो ये भी नॉट डिफाइंड है। तो मैम आपने तो बताया हमें क्लासेस में कि कुछ इक्वेशंस के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। इक्वेशंस के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, Yes, बट क्या ma'am. ये इक्वेशन है? जैसे x² = 4 होता है, हाँ तो x जी। की 2 वैल्यूज हो सकती है। हाँ जी, तो क्या 0/0 के 2 आंसर्स नहीं हो सकते मैम? नहीं, क्योंकि x² एक एक्सप्रेशन है, एक x/0 इज नॉट एन एक्सप्रेशन। एक इक्वेशन है। लिसन, देखो बेटा, पहले मैम जो कह रही है वो सुनो, ठीक है? x² = 4 आपका क्वेश्चन था, ये इक्वेशन थी, राइट? तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे, इसलिए वो वैल्यू हमारी आती है 2 या -2। बट ठीक है मैम, 0/0 के सामने हम a लिख लेते हैं। a = 0/0 बन गई मैम इक्वेशन। a एक = लीनियर इक्वेशन बन गई। 0/0। फिर एक a की linear कितनी equation वैल्यूज बन गई। निकली? बहुत सारी आ जाएंगी। अनगिनत आ जाएंगी। ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं मैम, आप ही ने बताया, जिनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, फाइनाइट सॉल्यूशंस भी होते हैं, नो सॉल्यूशंस भी होते हैं। ओके, चलो फिर ये क्वेश्चन मैं आपका कल क्लियर करती हूँ, मैं भी थोड़ा सा पढ़ के आऊंगी, ठीक है? तो बीइंग अ मैथ्स टीचर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो
खासकर जो चीज़ें अनडिटरमाइंड या नॉट डिफाइंड है उनको लेके सारे पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। जैसे पाई, आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है मैम पाई कहाँ से आया, क्यों आया, सो क्या मैंने जरूरत आपका पड़ी। वो वीडियो देख लिया था बट अभी फिर भी मेरे को क्लिक नहीं हुआ। और जैसे 0/0 है, 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इन्हीं से अगर करने पर मल्टीपल आंसर्स आएंगे तो मैथ का जो बेसिक ढांचा है जो ये कहता है कि मैथ्स इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, हम उसके खिलाफ चले जाएंगे। यानी कल को लड़ाई हो जाएगी, कोई बोलेगा 0/0 उसकी गली में 5 होता है, उसकी गली में 6 होता है, तो डिवाइड या मल्टीप्लाई या ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर मल्टीपल आंसर्स नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब अगर 3 + 4 7 है तो वो 7 है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कल को कि 6 है या 5 है। तो इन 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के आंसर मल्टीपल आंसर्स नहीं हो सकते। 1 to many functions, many to 1 पढ़ते हैं ना कि एक ही चीज करके मैं बार बार मल्टीपल आंसर्स नहीं ला सकता हूँ। ठीक है, खासकर लीनियर इक्वेशंस के जिनकी डिग्री 1 है। और डीप में अगर आप जाएंगे तो a इक्वल्स टू मैंने 0/0 लिखवा दिया तो क्या होना चाहिए था, उसका एक ही आंसर होना चाहिए था। x² इक्वल्स टू 4, उसकी डिग्री 2 है, उसके 2 आंसर आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आंसर्स 2 हो सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, ये खासकर मतलब कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं। बट फिर जैसे 0/0 को आप a⁴n दे देते इक्वल में तो a⁴ हम ये बोलेंगे ना कि यहाँ पर n के मल्टीपल्स वैल्यू हो गई, मतलब जैसे n को आप 0 भी रख लेंगे, 1 भी रख लेंगे, तो आप क्या रखना चाह रहे हैं बताओ मुझे। उस टाइम पे उसके सॉल्यूशंस डिसाइड होंगे। मतलब एक इक्वेशन में मैं खुद ही कह रहा हूँ कि x⁴n + x² + 0, तो इसकी डिग्री क्या हुई, क्या हुई डिग्री? हाईएस्ट जो भी इसका ऑर्डर होगा। वो आपने n मान रखा है तो व्हाट इज n, तो हम फिर वापस वहीं पे आ जाएंगे। और जब आप उसे क्या कहेंगे, मान लिया आपने n को कुछ भी नंबर लिया तो वो उसके अनडिटरमाइंड स्टेज की तरफ ही हमें ले जा रहा है कि हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या वैल्यू है, तभी तो हमने कहा अनडिटरमाइंड है। अनडिफाइंड, अनडिटरमाइंड, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो और दूसरा, खासकर इस लेवल के स्टूडेंट को जो 0 से डिवाइड करना आपको सिखाना है वो ऐसे सिखाना है, आपने कुछ चीजें दे दी स्टूडेंट्स को, बोल दिया ये चलो 5 यहाँ पे और रखे हैं, मतलब 6 मेरे पास कंकर हैं और मैं उन्हें 2 से डिवाइड कर रही हूँ, कितने ग्रुप्स बनेंगे, तो आप वहीं पे ग्रुप्स बना के दिखा दोगे। फिर आप बच्चों को बोलना इनके 0 वाले ग्रुप्स बनाना, तो स्टूडेंट्स अपना पेन ही मूव नहीं कर पाएंगे। ये चीज तो आप खासकर पाई 0 से डिवाइड होना, a⁴0 1 होता है, लेकिन 0⁴0 अनडिटरमाइंड क्यों होता है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है, ये कुछ चीजें हैं जो मतलब इंटरव्यूअर को मजा आता है सब पूछने में। हालांकि ये सब चीजें अनडिटरमाइंड है, अनडिफाइंड है, इन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता, खासकर बच्चों के लेवल पे। दूसरा आपका नेगेटिव पॉइंट मैथ्स की तरफ से, मैथ्स पेडागोजी। आपने वीडियोस नहीं देखी बिल्कुल भी, मतलब आपने हमारा मतलब जो जिसमें हमने प्रिपरेशन कराई है वो बैच देखा है? नहीं, मैंने जस्ट अभी जो लाइव बैच इंटरव्यू का लेटेस्ट आया था वही देखा। उसमें 3 क्लासेस में, एक बस। क्लास में मैंने नेचर ऑफ मैथ्स पढ़ाया हुआ पूरा कि गणित की प्रवृत्ति क्या है। मैथ्स की जो शेप होती है वो स्पिंडल होती है, लट्टू नुमा होता है मैथ, टोल शेप का होता है, वर्टिकल ग्रोथ और होती है। पढ़ा है ये मैंने कहीं। और प्रीवियस नॉलेज मैथ्स में इसलिए जरूरी है क्योंकि मैथ्स में हर कॉन्सेप्ट पे दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। एक बारी को इंग्लिश में चल जाएगा कि बच्चे ने कोई लास्ट प्ले ना पढ़ा हो, लेकिन मैथ्स में नहीं चलेगा कि आपने प्लस ना सीखा और मैं आपको मल्टीप्लाई सिखा दूं। तो मैथ्स में प्रीवियस नॉलेज इसलिए जरूरी है क्योंकि हर पिछली नॉलेज पे अगली नॉलेज बनेगी। खैर ये तो सब क्लास की बात है, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूं। मैथ्स पेडागोजी बिल्कुल पॉइंट गायब है। और वो जो आपका ये कहना कि मैं इमोशनल हूँ, तो आप स्कूल के मतलब टीचर्स के प्रति इमोशनल दिखा रही हैं खुद को, केवी के स्ट्रक्चर की तरफ खुद को इमोशनल दिखा रही है, रेदर देन यू शुड बी इमोशनल टुवर्ड्स द स्टूडेंट कि अलग अलग फील्ड से स्टूडेंट बट आ सर रहा है। जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तब तो हमारा कनेक्ट ज़्यादा टीचर्स के ही थ्रू बनता है उस ना। टाइम पे, अब तो आप टीचर बन रही हैं, अब आप वहाँ पे इस टीचर्स के साथ कनेक्ट बनाने थोड़े जा रही हैं,
अब तो आप स्टूडेंट से कनेक्ट बनाने वही जा हो रहे गया हैं। ना, वाइस वर्सा हो गया। एज ए स्टूडेंट आप कनेक्ट करते थे अपने टीचर को, अब टीचर टीचर हो कर तो पा रहा था ना आपसे कनेक्ट। हाँ, तो टीचर है तो अब पर स्टूडेंट मैं क्वेश्चन ही ये समझी थी कि आपको केवी से क्यों इतना इमोशनल नहीं, वो कनेक्ट तो है, क्वेश्चन उधर चल रहा था। वो तो इसलिए आपने था। बोला इमोशनल, आपने बोला मैं हाँ। टीचर मतलब केवी में इसलिए भी बनना चाहती हूँ क्योंकि आई एम मोर इमोशनल टुवर्ड्स केवी। हाँ, तो अब मुझे उसमें सर्व करना है एज क्योंकि उसने मुझे दिया, तो आप वैसा वाला मतलब मैं इसका बोलना बेटर चाहती आंसर ये हो सकता है कि मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है हाँ। और मैंने देखा है कि वहाँ पे अलग अलग जगह के बच्चे आते हैं। तो मेरे अंदर, मैं खुद उस एनवायरनमेंट से आई थी कि मेरे 5 अलग अलग तरीके के दोस्त थे, मुझे पता था उनसे कैसे डील करना था। तो मैं 5 अलग अलग भाषा बोलने वाले स्टूडेंट्स, 5 अलग अलग कल्चर वाले स्टूडेंट्स से डील कर पाऊंगी। ये कुड हैव बीन बेटर आंसर। और जब भी आप अपने किसी स्टेट के बारे में बोलें, जैसे आपने कहा कि मैं उत्तराखंड से हूँ, राजस्थान में रहती हूँ, तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन उस स्टेट से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे राजस्थान में तो अभी 19 डिस्ट्रिक्ट बने, ओके, और आप तो बहुत फेमस सिटी से भी हो, कोटा, ठीक है। कोटा के वो जो है बोलते हैं सांसद का नाम पूछा जा सकता मिस्टर ओम है, बिरला। हाँ, जो लोकसभा स्पीकर भी हैं। Yes, sir. कोटा फेमस किस लिए ये भी पता है। फिर राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट बने, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए हैं, 50। और इस बेस पे पूछा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है, ओके। जो उत्तरांचल नाम था वो आपका 9 नवंबर 2000 में आपका उत्तरांचल बना था। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया। 2007। उत्तराखंड 1 जनवरी 2007। आप 7 साल नाम चेंज 2007 में हुआ है, बना उत्तर प्रदेश से जब अलग हुआ वो 2000 में में हुआ। था। ओके सर। और आप तो चमोली से हो, तो आपसे क्वेश्चन वो थे ना, चिपको आंदोलन। गौरा देवी, शी बिलोंग टू चमोली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चमोली लार्जेस्ट में उत्तरकाशी है शायद, हाँ, लार्जेस्ट। चमोली लार्जेस्ट नहीं है। So, I love your personality. I love the voice modulation and the intonation of your deliverance. Basically, आपको pedagogy पे थोड़ा सा work करने की ज़रूरत है, as sir has already mentioned, because you were giving interview in English, so I wanted to shed some light on certain things. आप जब सर को cater कर रहे थे तो आपने it do not बोला था, like whatever language you use, make sure you do justice with the same. And आपने बीच में एक मुझे cater करते वक्त तो बोला था, I तो, so Okay, like that you could just avoid this method. Okay, thank you. I think it was good overall. The presentation was good. बस एक था, आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बेस अपना इंग्लिश का क्रिएट कर दिया था, सो दैट गिव्स अस एन इम्प्रेशन दैट यू आर वेल वर्स्ड विद इंग्लिश एंड यू आर वेरी फ्लुएंट विद इट. बीच में कोशिश करो फिर स्विच ना करो दूसरी लैंग्वेज में, या तो पहले ही आप आगे हिंदी में बात शुरू कर दो, फिर हम आपसे वैसे ही बात कर लेंगे, क्योंकि पहले काफी आई थिंक फ्लुएंट अच्छी फ्लो था, फिर बीच में एकदम से जब इन्होंने आपसे पूछने शुरू किए क्वेश्चंस तो एक्सप्लेनेशन सर ने बेटर करने हिंदी के में लिए बोला, सो आई थॉट कि मुझे भी अब हिंदी में जवाब देना चाहिए mix आज करके। वैसे कोशिश आई थिंक ये रहनी चाहिए कि एक आपने जो एक लैंग्वेज पकड़ी है एक इंटरव्यू में, आई थिंक मे बी यू शुड ट्राई टू टेक इट फॉरवर्ड विद यू. ओके, सो मोस्टली वैसे हम आपको देख के ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ओके। स्विच ना करो लैंग्वेज में. आई थिंक मतलब अगर हमसे हिंदी में भी क्वेश्चन आए तो हम इंग्लिश में ही जवाब दें, ऐसा बेटर मतलब है? आई थिंक लैंग्वेज स्किप मैंने नहीं देखा है किसी इंटरव्यू में, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप बहुत कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बस आप जैसे मेन पॉइंट जिसमें ये है कि आप आप अपने आप को अच्छे से बोलते explain कर समय फिर आप ग्रामेटिकली दाएं बाएं होती चली गई तो उससे पॉइंट चला गया। मतलब इंग्लिश में बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में, अगर आपने, मैंने हिंदी में पूछ लिया और आपने हिंदी में बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अब उसके बाद फिर से इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो आप फिर से थोड़ा सा गड़बड़ आ गई, डर गई, मतलब स्विच ऑफ लैंग्वेज में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो लेट इट भी, छोड़ दो। वो वही लग रहा था कि जब आप हिंदी में स्विच किए तो मे बी बीच में आप सेंटेंसेस को वापस इंग्लिश में पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट वो ग्रामेटिकली आप उसको फ्रेम नहीं कर पा रहे थे, तो वो दिख रहा था इंटरव्यूअर को कि ये अब फ्रेम नहीं कर पा रही है तो वापस हिंदी में स्विच कर रही है, ओके, है ना. थोड़ा सा उस चीज पे वर्क कर लीजिए. ओके। बाकी ओवरऑल इट वाज गुड, आंसर्स वर क्रिस्प एंड डायरेक्ट एंड द इंट्रोडक्शन वाज गुड. आपका अच्छा वॉइस मॉड्यूलेशन बढ़िया है सबका, ओवरऑल वाज नाइस. एग्ज़ाम में बच्चे का नकल करने की बात पूछी थी, तो बच्चे का पेपर वो अपने पास रख लेंगे, ठीक है, और दूसरा पेपर देंगे। अगर नकल पकड़ी गई है तो वो उस पेपर के साथ ही रख देंगे, क्योंकि एग्जामिनर अलग होता है और सब्जेक्ट टीचर अलग होती है। सब्जेक्ट टीचर ही उस पेपर को चेक करेगा,
है ना। तो वो जब दोनों चीज़ें वो पेपर साथ जाएंगे, सब्जेक्ट टीचर अपने आप उसमें देख लेगी कि बच्चे ने नकल की भी है या बच्चा कितना होशियार है, या बच्चे अपने मन से कितना है, वो टीचर यूज टू होती है बच्चे के हर व्यवहार से। फिर बच्चे का टर्मिनल टेस्ट का एक सब्जेक्ट का पेपर बीमारी के कारण छूट गया, तो उसके लिए मेडिकल होता है, तो वो मेडिकल लगाया जाता है, तो वो फिर सब्जेक्ट के जो नंबर हैं वो उसको छूट मिल जाती है। और क्लास रजिस्टर टीचर के पास जो होता है उसमें बच्चे का नाम होता है, फादर्स नेम होते हैं, वैसे कॉलम बने होते हैं, लेकिन टीचर डायरी में आप अलग से ये सारे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हर बच्चे की पर्सनल नोट करके रख सकती है, जो आपको पढ़ाने में भी और आगे बच्चे के को क्या चीज़ सिखानी है, उस किस चीज़ में वो कमी है, उसमें पढ़ने में लिखने में है या उसको पढ़ने में है, या आप जो होमवर्क देती हैं वो कुछ टाइम पे करके नहीं लाता है, या क्लास वर्क वो करता है होमवर्क नहीं करके लाता, या याद नहीं करता, वो सारी चीज़ें आप बच्चों का एक रिकॉर्ड बना लेंगे, तो टीचर डायरी में वो अलग पेज बना सकती हैं। तो इस तरह बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन कर। मैं भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपके लिखे थे बताना ही भूल गया। आपका पोस्चर बहुत ज़बरदस्त है, यू वर काम थ्रू आउट, आपको बहुत परेशान किया, डेमो में भी परेशान किया, लेकिन आप यू वर काम। और अब दूसरी एक बात आपकी सही थी कि आप अपना पॉइंट रख पा रहे थे इजीली काफ़ी। जब आप आई तो आपका इंट्रोडक्शन इतना ज़बरदस्त था, लेकिन वो जैसे ही वो पेडागोजिकल क्वेश्चंस की तरफ हम गए, टीचिंग स्किल्स की तरफ आपके गए, तो वो फिर अब क्योंकि आप उस चीज़ को छिपा तो सकते नहीं हो, अगर कोई आपसे कोई फैक्ट पूछेगा तो वहाँ आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है। बाकी मतलब आपका लेकिन बोलने का तरीका, लहजा, फर्स्ट इम्प्रेशन सब टॉप नॉच था। बस आप अपनी मैथ्स पेडागोजी को सही कर लो, आई थिंक यू वुड स्कोर अमंग द बेस्ट। थैंक यू सर। Do सर you have डेमो any टीचिंग से queries? एक आपका वो क्वेश्चन था कि जैसे आप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में हो, हाँ एसएससी सीएचएसएल के थ्रू? Yes, CHSL के थ्रू। अभी जस्ट अप्रैल में ज्वाइन किया है, अप्रैल, अच्छा अभी ज्वाइन अभी करा है। जस्ट। ओके। डेमो का आपका डेमो में भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने डेमो भी दे के दिखाए हुए, डेमो की भी वीडियोस रिकॉर्ड करके दी हैं। अभी हाँ देखी मतलब नहीं मैं अभी? काफ़ी चीज़ें भूल गई, नहीं देखी देखी हैं, है? बट यहाँ पे करना भूल गई, जैसे डेट टॉपिक, मतलब हाँ। कुछ भी प्रॉपरली नहीं हुआ। तो इसीलिए आप ना जब भी कोई टॉपिक दें, मैंने अपने डेमो को देते हुए भी बताया था कि जब Yes. कोई टॉपिक दें तो 2-3 मिनट ले लो आराम से, पानी पी लो, पानी वानी पी लिया, आसपास की चीज़ों को देख लिया, फिर आप शुरू करो। और दूसरा, एक बार जितने भी चैप्टर्स हैं ना, सब में एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है वो जरूर पढ़ना है कि उसमें चैप्टर शुरू कैसे किए गए, कोई कहानी के थ्रू जोड़ देना है, ये करना है। और टॉपिक को सबसे पहले लिखो बोर्ड पर, जो भी आप करा रहे हैं। जब आप बोर्ड की तरफ जाएं, जब जैसे आपने अब सोच लिया कि अब लिखना है, तो बातों बातों में आप टॉपिक लिखेंगी। दूसरी चीज आप ये करेंगे कि डेट, मैंने बताया था कुछ ना कुछ रिलेट करके टॉपिक से। कुछ टॉपिक से रिलेट करके लिख दिया कि ये देखो इंटीजर्स है ना सारे डेट में, ये चीजें करना। और जीरो वाला भी, जीरो इज नॉट कंपोजिट बिकॉज जीरो के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते हैं। और ये कहना कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, ये तो और बड़ी गलती हो जाएगी। फिर बच्चे परेशान करेंगे, बोलेंगे 1 भी तो मैम प्राइम नहीं है, तो ये कंपोजिट हो गया क्या? तो एनीथिंग दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स प्लस फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट। जीरोस में पीछे रह जाता है। ओके। बाकी अच्छा, आपके मार्क्स कितने हैं? मेरे 150 हैं अभी तो, बाकी शायद कुछ करेक्शन वगैरह भी हुआ है। एंड योर कैटेगरी इज जनरल। जनरल। यू हैव गुड चांस, बस आपका इंटरव्यू थोड़ा पेडागोजी वाला पार्ट संभाल लीजिए। यू हैव नॉलेज। थैंक यू Thank you. सर, थैंक All यू, the best. थैंक यू।